2022-23 நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட் குறித்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி புதுச்சேரியில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் ஜல் சக்தி மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையின் மத்திய இணையமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் பங்கேற்றார். இந்நிகழ்ச்சியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் சுவாமிநாதன், புதுச்சேரி மாநில உள்துறை மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அங்காளன், வெங்கடேசன், ராமலிங்கம், அசோக் பாபு மற்றும் கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றார்கள். மத்திய இணையமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் அவர்கள் பங்கேற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் தொழிலதிபர்கள், மருத்துவர்கள், பொறியாளர்கள், வேளாண் வல்லுநர்கள், வழக்கறிஞர்கள், கட்டிட வரை கலைஞர்கள், தொழில் முனைவோர்கள் மற்றும் பல்துறை வல்லுநர்களோடு 2022-23 மத்திய பட்ஜெட்டில் தம் துறையின் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கினார். அப்போது அவர் ஹர் கர் ஜல், அதாவது அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு திட்டத்தில் புதுச்சேரி 100% இலக்கை அடைந்து சாதனை படைத்திருப்பதாக பாராட்டுக்களை கூறினார். 15 अगस्त 2019 में शुरू हुए, 2020 में गोवा ने अपने 100% लक्ष्य को प्राप्त किया। 2021 में 3 यूटी थे, उसमें पांडिचेरी था, अंडमान निकोबार, दमन दीव, उनने अपना टारगेट अचीव किया। अब 2022, 23 और 24 तक पूरे देश के हर घर में पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचे, ये प्रधानमंत्री का संकल्प है और जो पूरा होगा पांडिचेरी ने किया है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं ये कहकर मैं अपनी बजट पर बात शुरू करूंगा ताकि आपको आसानी से बजट समझ में आएगा। कोरोना के काल में கொரோனா தொற்று நோயின் கடினமான சூழல்களுக்கு மத்தியில் மத்திய அரசின் தொலைநோக்கு கொள்கைகளின் விளைவாக கடினமான சவால்களை சந்திக்கக்கூடிய விநியோக முறையானது மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டது. தனித்துவமான சாதனையாகும். ஜன் தன் யோஜனாவின் மூலமாக ஒவ்வொருவருக்கும் வங்கிக் கணக்கை திறந்து அரசின் மானியங்களை அவரவரின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக பணம் செலுத்துவதை சாத்தியமாக்கியது ஒரு புரட்சிகர நடவடிக்கையாகும். மக்களும் விவசாயிகளும் இடைத்தரகர்கள் இன்றி அரசின் நேரடி உதவிகளை இதனால் பெற்று வந்தார்கள். மேலும் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்களை வழங்குவதில் அரசு வெற்றி பெற்றது. அது மட்டுமல்லாமல் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் தேவைக்கு ஏற்ப நாடு முழுவதும் அனுப்புவதற்கான சரியான திட்டமிடப்பட்டது. பெரிய அளவில் விரைவான மற்றும் தெளிவான செயல்முறை திட்டமிடப்பட்டு மக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் முறையையும் எளிதாக சாத்தியமாக்கியது. अगर ये सप्लाई चेन सही ना होती तो क्या उस गरीब आदमी को अनाज पहुंच पाता? और इससे सबसे महत्वपूर्ण जो चौथी बात मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन का कि जब क्राइसिस इस देश में आई तो ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कम जगह पर थी। रोड से, रेल से, खाली टैंकर एयरलिफ्ट करके और जल मार्ग से और सेना के तीनों अंगों का उपयोग करके उस ऑक्सीजन की क्राइसिस को ठीक कर देना। मुझे लगता है कि देश की आज़ादी में ये पहला अवसर था जब मिलिट्री के तीनों अंगों को सिविल सर्विसेज में उपयोग किया गया। मैं मानता हूँ ये जो सप्लाई चेन थी इसने हमको आपदा से बाहर निकाला। पांचवा कंपोनेंट इसमें मैं सप्लाई चेन में कहता हूँ जो आगे बजट में आएगा, एग्रीकल्चर में ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है। फिर उसके बाद में उसको खरीदना, तो सबसे ज़्यादा एमएसपी की कीमत पर उस अनाज को खरीदा गया। फिर उसका भंडारण करना, देश लॉकडाउन में था लेकिन ये तीनों काम हो गए। उत्पादन भी बढ़ गया, खरीदी भी हो गई और उसका भंडारण भी हो गया। मैं समझता हूँ ये 5 हिस्से हैं सप्लाई चेन के जो बजट के पहले इस देश ने देखे और जिसके लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब मैं अपनी बजट की बात शुरू करता हूँ।
बजट का जो पहला पैरा था उसमें कहा गया कि हमने अपने प्राचीन अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभों पर फोकस किया। पहला कृषि, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा उत्पादन, सबसे ज़्यादा एमएसपी पे खरीदी और सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट, ये आपदा के बीच में हुआ है। ये बजट का पहला, हमारे बजट का बेस, पहला स्तंभ है। दूसरा है सर्विस का। பிரதமரின் கதி சக்தி திட்டம் மேற்கூறிய முயற்சிகளை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஒரு தொலைநோக்கு திட்டமாகும். பிரதமரின் கதி சக்தி திட்டத்தின் கீழ் சாலைகள், ரயில்வே, விமான பாதை, விமான நிலையங்கள், நீர் துறைமுக நிலையங்கள், சரக்கு போக்குவரத்து, நீர் வழிகள் மற்றும் தளவாட உள்கட்டமைப்பு என 7 துறைகளில் உள்ளடங்கி உள்ளன. प्राप्त की और दुनिया में भी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इस बीच में अगर हुआ है तो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का हुआ है। और चौथा है जो सप्लाई चेन को मैंने आपको विस्तार से बताया। ये बजट इन 4 स्तंभों पर खड़ा हुआ है और इसलिए बजट में इसी सप्लाई चेन और 4 स्तंभों को ध्यान में रखकर पीएम गति शक्ति पर फोकस किया गया है। और पीएम गति शक्ति के 7 कंपोनेंट्स हैं। पहला है सड़क, और इसलिए बजट में प्रावधान है कि 25,000 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण होगा। दूसरा है रेल, जिसमें तय किया गया है, मुझे लगता है कि इसको अकेले अकेले बोलते जाए ना। दूसरा है रेल, जिसमें 2000 किलोमीटर रेल मार्ग नए बनाना और 400 वंदे मातरम ट्रेन्स को नए अपग्रेडेशंस के साथ में चलाना। तीसरा कंपोनेंट है हवाई मार्ग। हमारे पास में छोटे एयरपोर्ट भी है, बड़े एयरपोर्ट भी है, उनका अपग्रेडेशन करना। एयरपोर्ट होने के बाद भी वहाँ पर हवाई जहाज़ नहीं आते, तो उड़ान योजना के तहत में उस कनेक्टिविटी को प्रॉपर करना, ये तीसरा कंपोनेंट है उसका। चौथा है विमानपत्तन, चाहे वो हमारे हवाई बेस हो या फिर जल पर बने हुए हमारे बंदरगाह हो। उदाहरण के लिए इसी पांडिचेरी में जो कार्यकाल में जो हमारा वो बन रहा है, निर्यात के लिए और सस्ती यात्रा के लिए, चाहे माल हो और चाहे यात्री परिवहन हो, जलमार्ग सबसे सस्ता है। एक्सपोर्ट के लिए हमको बंदरगाह चाहिए, तो चौथा हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो बंदरगाह पर है। 5वां है माल परिवहन। अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो समुद्र के किनारे सबसे सस्ता तो जल मार्ग होगा, लेकिन पहाड़ पर क्या होगा? तो इसलिए 8 स्थानों को चयनित किया गया कि हम 8-8 किलोमीटर के 8 जगह पर रोपवे बनाएंगे। उससे लोग भी जाएंगे और उससे सामान की आवाजाही भी स्मूथ होगी। और उसके बाद में आखिरी है लॉजिस्टिक, और इसलिए 100 कार्गो टर्मिनल का ऐलान इस बजट के भीतर किया गया है। अब मैं अपने जल संसाधन मंत्रालय पर आता हूँ। जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रुपया इस बजट में प्रावधान इस वर्ष के लिए किया गया है। 3.8 करोड़ परिवारों को इस वर्ष में पानी पहुंचाना है हर घर तक। ये जो 60,000 करोड़ है, ये ग्रांट नहीं है स्टेट्स को। அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பை வழங்குவதற்காக ஜல் ஜீவன் திட்டத்திற்கு இந்த நிதியாண்டின் பட்ஜெட்டில் 60,000 கோடி ரூபாய்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 2022-23 நிதியாண்டில் 3.8 கோடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் முதன்முறையாக கங்கை கரை ஓரத்தில் 5 கிலோமீட்டர் அகலமான தாழ்வாரங்களில் விவசாயிகளின் நிலத்தை மையமாக வைத்து இயற்கை விவசாயம் தொடங்க இந்த நிதியாண்டில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் பலன் வரும் காலங்களில் நன்றாக தெரிய ஆரம்பிக்கும். வரும் ஆண்டுகளில் நாட்டில் உள்ள பல்வேறு ஆற்றங்கரையோரங்கள் இந்த திட்டத்தில் சேர்க்கப்படும். இதன் மூலம் நாடு முழுவதும் ரசாயனம் அற்ற இயற்கை விவசாயம் பெருமளவில் ஊக்குவிக்கப்படும். நாட்டின் வளர்ச்சி பற்றிய வரலாறு எழுதப்படும் போதெல்லாம் நமது குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளில் நதிநீர் இணைப்பும் அடங்கும். ஒரு கற்பனைக்காக மழைக்காலங்களில் கூட தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருக்கும் இடங்களில் அனைத்து கால நிலைகளிலும் தண்ணீர் கொண்டு வருவது என்பது மிகப்பெரிய சாதனையாகும்.
इसको हरी झंडी பிரதமரின் மன உறுதியின் इसकी பலனாக प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। தண்ணீர் அதிகம் உள்ள படுகையையும் பற்றாக்குறை படுகையையும் இணைக்கும் திட்டமானது சாத்தியப்பட்டுள்ளது. मैं मानता हूं அதன் ஒரு பகுதியாக देश की आजादी के கேன் बाद பேத்வா நதிநீர் आजादी के இணைப்பு अमृत பணிகள் महोत्सव में தொடங்கப்பட்டுள்ளன. ये सबसे सफल கேன் फैसला பேத்வா है திட்டத்திற்காக कि देश के அரசு समस्याओं का ரூபாய் स्थायी 44,605 கோடிகளை ஒதுக்கி இருக்கிறது. 1 लाख हेक्टेयर இதன் மூலம் agriculture 9.08 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். का पानी मिलेगा இதன் மூலம் 62 லட்சம் மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி கிடைக்கும். और 72 இந்த मेगावाट திட்டத்தில் सौर ऊर्जा 103 மெகாவாட் நீர் மின்சார தயாரிப்பு, 27 மெகாவாட் சூரிய மின்சக்தி தயாரிப்பதற்கான திட்ட வரைமுறைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. कह रहा हूं कि वो सिंचाई का पानी भी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, पन बिजली भी मिलेगी, सौर ऊर्जा की बिजली भी मिलेगी। इतनी इम्पोर्टेंट परियोजना के बावजूद भी हमारे राज्य आपस में सहमत नहीं होते। इससे बड़ा एक और आंकड़ा है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस देश में प्रतिवर्ष 16% से 17% में सूखा पड़ता है और 16 से 70% में ही बाढ़ आती है। और ये हर किसी सरकार राज्य की हो या केंद्र की हो उसके वित्तीय प्रबंधन को परेशान करती है। अगर ये नदी जोड़ो अभियान गति पकड़ेगा तो आज़ादी के 100वें वर्ष में भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। केन बेतवा के मॉडल की सक्सेस के बाद बजट में 5 रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है। दमनगंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार और पेनार कावेरी। और साथ में மேலும் कहा गया है कि 5 நதிநீர் இணைப்பு திட்டங்கள் இந்த ஆண்டின் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 1 தமன் கங்கா பின்சால், 2 பார் தாபி நர்மதை, 3 கோதாவரி கிருஷ்ணா, 4 கிருஷ்ணா பெண்ணாறு மற்றும் 5வதாக பெண்ணாறு காவிரி. இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்ட 5 திட்டங்களுக்கும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு மத்திய அரசின் நிதி உதவி பெறுவதற்கு மாநிலங்களுடன் உடன்படிக்கை செய்யப்படும். बजट में एक बात आपने सुनी होगी कि गंगा के किनारे दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर में प्राकृतिक खेती करने का ऐलान किया गया है। जीरो बजट खेती हो, जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो, हमें इसको लिंक करना चाहिए कि 2023 दुनिया ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। भारत परंपरागत तरीके से मोटे अनाज का उत्पादक रहा है। अगर हमने दुनिया की मांग के अनुसार हमारे किसान भाइयों ने इस अनाज की गुणवत्ता और अच्छे उत्पादन के साथ में अपनी तैयारी की जो अभी कोरोना में दिखाई है, मैं मानता हूँ किसान को फायदा होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसान को अच्छी कीमत मिलेगी और साथ में देश का नाम दुनिया के पटल पर ऊंचाइयों पर जाएगा यदि हम दुनिया की मांग को पूरा करते हैं। और बजट में इसलिए स्पष्ट तौर पर नाबार्ड का उल्लेख किया गया है और सरकार के अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं में स्पष्ट किया गया है कि हमारे कृषि और ग्रामीण उद्यम, किसान हो या छोटे उद्योगपति, दोनों के लिए नाबार्ड से मदद करने की अपेक्षा की गई है और वित्तीय प्रावधान मंत्रालय உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் 2023ஆம் ஆண்டு சிறு தானியங்களின் ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது. சிறு தானியங்களின் பாரம்பரிய உற்பத்தியாளராக நமது நாடு தொடர்ந்து இருந்து வருகின்றது. அதனால் உலகின் தேவையை நாம் பூர்த்தி செய்ய முடியும். இதன் மூலம் இந்திய விவசாயிகளின் வருமானம் பெருகி வேலை வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும். உலக அரங்கில் இந்தியாவின் பெருமை, மரியாதை மற்றும் திறன்கள் அங்கீகரிக்கப்படும். நபார்ட் வங்கி மூலம் விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு மூல நிதியை அரசு வழங்கி உதவும். पसंद किया जाता है लेकिन हम ब्रांड नहीं बन पाए। भारत सरकार ने तय किया है और उसके 3 कारण थे कि हमारी गुणवत्ता के बारे में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, दूसरा मार्केटिंग नहीं कर पाए और ब्रांडिंग नहीं कर पाए।
भारत सरकार ने एफपीआई की इस स्कीम में, पीएलआई स्कीम में 1022 करोड़ रुपया पहली बार रखा है, ताकि हमारा कोई बड़ा उद्योगपति, और उसमें मैं चूँकि पांडिचेरी में खड़ा हूँ, तो अभी पहले बहुत सीमित मात्रा में थे, लेकिन इसमें समुद्री उत्पाद में मछली भी इस कंपोनेंट में शामिल है, खान पान के अलावा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत सुनहरा अवसर है और दूरगामी अच्छा विचार है। हमारे फल और सब्जियां जो जल्दी सड़ जाते हैं, उनकी उम्र अगर बढ़ा दी जाए तो किसान का भी फायदा है, व्यापारी का भी फायदा है, और सबसे बड़ा देश का फायदा है। ये इस मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य है। நாட்டில் உற்பத்தியாகும் தானியங்கள், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் விரைந்து கெட்டுப் போகாமல் இருப்பதற்காக அரசு தீவிர முயற்சிகளை செய்து வருகின்றது. உணவு பதப்படுத்துதல் அமைச்சகத்திற்கு உரிய முன்னுரிமை வழங்கி மத்திய அரசானது கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகின்றது. உணவு பதப்படுத்துதல் துறையின் திட்டங்களுக்காக இந்த ஆண்டின் பட்ஜெட்டில் 135 மடங்கு நிதியானது அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சென்ற நிதியாண்டில் ரூபாய் 1199 கோடியாக இருந்த நிலையில் இந்த நிதியாண்டில் 2822 கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ऑपरेशन ग्रीन और यूनिट स्कीम ये हमारे उद्योगपतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोई किसान के अलावा जो छोटा व्यापार उसके साथ करने लगता है, इनके लिए ये दोनों स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेगा फूड पार्क में आपको जाना है तो ज़मीन आप खरीद नहीं पाएंगे। यूनिट स्कीम के द्वारा आप वहाँ पर जाकर अपना स्थान ले सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ऑपरेशन ग्रीन हो या यूनिट स्कीम, इनको भी हमें ध्यान से देखना चाहिए, जिसमें 151% बजट बढ़ा है और एक में 75% बजट बढ़ा है। இந்த நிதியாண்டில் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்பதா யோஜனா திட்டத்திற்கும் அளிக்கும் நிதியானது 28.6 மடங்கு உயர்த்தப்பட்டு ரூபாய் 200 கோடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. PMFME திட்டத்திற்காக இந்த பட்ஜெட்டில் 80% நிதி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மக்கள் சிறு தொழிற்சாலைகளை அவர்களுடைய பகுதியிலேயே அமைக்கலாம். உலகமே இந்தியாவின் சுவையை விரும்பி இந்தியாவில் உற்பத்தியாகும் உணவுப் பொருட்களை ருசிக்க விரும்புகிறது. இதனை கருத்தில் கொண்டு தற்போது மத்திய அரசு பல புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி உள்ளது. இந்தியாவின் பெயருடன் அதன் பொருட்களும் உலகின் ஒவ்வொரு மூலைக்கும் சென்றடைய வழிகளும் வாய்ப்புகளும் உணவு உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு மற்றும் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காக இந்த நிதியாண்டில் PLI திட்டத்திற்கு ரூபாய் 1022 கோடியை அரசு ஒதுக்கியிருக்கிறது. அதிகப்படியாக ஆபரேஷன் கிரீன் 151%, யூனிட் ஸ்கீம் 75% வளர்ச்சியை எட்டியிருக்கின்றன. விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களின் தரத்தை உயர்த்துவதற்காக அரசு பல உதவிகளை செய்து வருகின்றது. कि हम 2 लाख समूहों को आने वाले 4 सालों में 10,000 करोड़ रुपए देकर उनको फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि एक माइक्रो लेवल पर भी, चाहे वो आंगनवाड़ी हो और चाहे वो कोई फूड प्रोसेसिंग में काम करने वाला समूह हो, दोनों के बारे में इतना माइक्रो प्लान बना है कि हम 4 साल बाद हम 100% लोगों को नहीं कर सकते, लेकिन जिन यूनिट्स को हम तय करें उनको 100% सैचुरेशन पर पहुंचाएं। ये इच्छा प्रधानमंत्री की इस बजट में है। मैं अंत में आज़ादी के अमृत वर्ष में और कोरोना की महामारी के बीच जो सफलता है, इसको शायद सामान्य आदमी के मन में शायद उतनी उत्कंठा नहीं होगी, लेकिन कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई उद्योगपति वो मानेगा, या कोई शिक्षाविद, कि भारत हमेशा से रक्षा क्षेत्र में इंपोर्ट करता रहा है, उसने एक्सपोर्ट नहीं किया। ये पहला साल है, कोरोना के दूसरा साल, जिसमें हमने रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्ट किया है, और बड़ा एक्सपोर्ट है, छोटा एक्सपोर्ट नहीं है। दूसरा, ये तय किया गया कि कुछ चीज़ें लिस्ट कर दी गई
कि ये भारतीय कंपनियों से ही ली जाएंगी, उसका आयात नहीं हो सकता, उसका इंपोर्ट नहीं हो सकता। ये ऐसे काम हैं जो हमारे टैलेंट को, जो हमारी नई जनरेशन है, उनके लिए एक बेहतर भविष्य देंगे। और हम ये मानते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण आपने सुने होंगे, कल ही उन्होंने कहा कि अब हम इंपोर्ट वाले देश नहीं, एक्सपोर्ट वाले देश बनना चाहते हैं। ये हमारी सामरिक महत्व को भी बढ़ाएगा। और उन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है कि इस कोरोना के बीच में हमारे देश में वो नौजवान मित्र जो घरों में थे, यंगस्टर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्हें 24 यूनिकॉर्न बना दिए। और आप कल्पना करिए, यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि हज़ारों करोड़ का ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है। मुझे लगता है ये जो बजट है, ये प्रधानमंत्री का जो रोड मैप है, वो यहीं पर नहीं रुकता। और वो हमेशा कहते हैं कि आने वाले समय में जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो हमारा भारत कैसा होगा, ये बजट उसका रोड मैप है। और इसलिए अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बातें बजट में बहुत हैं, लेकिन समय की सीमा में जितना मैं कह सकता था, और मेरी अपनी भाषाई समस्या थी, अन्यथा शायद 1 घंटे में मैं इससे दुगनी बात आपके बीच में कह पाता। लेकिन मैं मानता हूँ कि उद्योगपतियों, वो भारतीय अगर उद्योगपति है तो उसको किसी भी क्षेत्र में जाने का अधिकार है। ये सरकार ने तय किया है। वो चाहे हमारा न्यू एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो यूनिकॉर्न बना हुआ नौजवान हो, वो किसी भी क्षेत्र में अपनी भागीदारी तय कर सकता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि देश में जितनी भी सड़कें बनी, बजट में प्रावधान था 1 लाख करोड़ का, और हमारे नितिन जी ने सड़कें बनाई 22 लाख करोड़ की। ये जो वित्तीय प्रबंधन है, इसमें देश के उन लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। सरकार अकेले के बजट से हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, और ये बजट इसी का रोड मैप है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। இறுதியாக தொழில் முனைவோர்கள் எழுப்பிய ஐயங்களுக்கு மத்திய இணையமைச்சர் விரிவான விளக்கங்களை அளித்தார்.